Hey everyone, welcome to the chemistry. I am super excited to start our chemistry journey with you. Today we are diving into the first chapter, Matter in our surroundings of class 9. So students, what is matter anyways? Well, it's basically everything from the chair you are sitting on to the air you are breathing. Yeah, that's all the matter. So I want to think about this. Have you ever noticed how ice melts into the water or how steam rises from a boiling pot? That's matter changing it from right before your eyes. So, in this video, we will explore the different kinds of matters, solid, liquid, and gases, and like how they behave. So, I have got you some fun examples and the experiments lined up. So, please stick around. So, let's get started and make chemistry super fun together. So students, let's see the index. Now in this video we will going to talk about like what is matter and the particles of matter with their characteristics, like types of matter, solid, liquid, gases with their properties, and the conversion of the states of matters, and in the last conclusion. So what is matter? So matter is just like anything which occupies the space and the mass is called matter. Like this includes the everything we can see, we can touch, and even those things which we can't see, like air that we can't see but we know that is matter. For example, iron and wood, etc. So let's move on to the next slide, that is the characteristics of the particles of the matter. So there are four characteristics. First characteristic is the particles of matter are very small. Second is particles of matter they have spaces between them, and the third one is particles of matter are constantly moving, and the fourth point is the particles of matter attract each other. So I'll going to explain you these points one by one. So फर्स्ट पॉइंट इज लाइक पार्टिकल्स दे आर वेरी स्मॉल. जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको मैटर, लाइक मैटर जैसे कि हमारे यहाँ आसपास कोई भी चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनी होगी, जबकि हम उन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते. तो इफ़ वी टॉक अबाउट शुगर पार्टिकल, अगर आप उस शुगर पार्टिकल को पानी में डिज़ोल्व कराएंगे तो वो जो शुगर का जो पार्टिकल है वो डिज़ोल्व हो जाएगा एंड इट विल गेट डिसअपियर, वो डिसअपियर भी हो जाएगा. लेकिन आप उस शुगर के जो आपने शुगर सोल्यूशन जो आपने बनाया है शुगर को पानी में डिज़ोल्व करके, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं. तो वो आपको बताएगा कि जैसे कि जो पार्टिकल्स है शुगर पार्टिकल दे आर स्टिल देयर. ओके, गॉट इट. So now the second point is like particles of matter they have spaces between them. लाइक एक काम कीजिए, घर पे आप एक काम करना, एक नमक लेना और एक पानी का बीकर लेना. आप उस नमक को पानी में डिज़ोल्व कराना. दैट सॉल्ट विल बी गेट डिज़ोल्व इन द वाटर एंड इट विल बिकम डिसॉल्व सोल्यूशन. क्यों सॉल्ट सोल्यूशन क्यों बनेगा? क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स, वो जो वाटर पार्टिकल जिसमें सॉल्ट सोल्यूशन आपका डिजॉल्व हुआ है वो उन पार्टिकल्स को के जो स्पेसेस है ना उनको फिल कर देगा अच्छे से. और ये भी आपको ये भी बताएगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं है, उनके पास स्पेसेस है उनके बीच में. ओके. सो द थर्ड पॉइंट इज लाइक पार्टिकल्स दे आर ऑलवेज मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग. सो ये मतलब कि जैसे अगर आप कभी भी शादी में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो आप मोस्टली परफ्यूम यूज़ करते हो. अगर आप उसको कहीं पे भी स्प्रे करते हो अपने कोई भी बॉडी पार्ट या फिर आप रूम में कहीं भी स्प्रे करते हैं तो वो जो स्मेल है वो पूरे रूम में पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है. क्यों होती है? बिकॉज पार्टिकल्स दे आर ऑलवेज मूविंग एंड दे आर स्प्रेडिंग आउट इनटू द एयर. ओके. तो लास्ट पॉइंट इज लाइक पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक हम लोग मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट एक दूसरे को पुल करती है. अगर जब वो क्लोज होते हैं तो उनके पास फोर्स होता है कि वो एक दूसरे को खींचे. तो ये जो फोर्स है ना ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में अलग अलग है. जैसे सॉलिड में स्ट्रॉन्गर होगी और गैसेस में सबसे कम होगी. लाइक देयर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस. Basically, these types are the classification based on the physical properties. Like solid में particles बहुत tightly packed होते हैं, liquid में थोड़े loosely packed होते हैं, gases में very loosely packed होते हैं. हम properties next slide में discuss करेंगे. बट उससे पहले कि ये वेरिएशन
की गई है, किसकी वजह से वेरिएशन आई है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, उनके अंदर वेरिएशन आई है। किसकी वेरिएशन? कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। लाइक किस में पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे, किस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस होगा, सॉलिड के में स्पेस है, लिक्विड के में स्पेस होगा या नहीं है। लाइक सॉलिड सॉलिड टाइटली पैक्ड है तो उसके बीच में स्पेस नहीं होगा। लिक्विड में जबकि स्पेस है थोड़ा सा, लेकिन तब वो आपका स्पेस होगा लिक्विड के अंदर। गैसेज में तो बहुत ज़्यादा ही स्पेस होगा। तो ये जो वेरिएशन है किसके बेसिस पे आती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बेसिस पे। सो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर प्रॉपर्टीज वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज द सॉलिड। सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी वो है फिक्स शेप। फिक्स शेप क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। ये क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी शेप अपने आप खुद नहीं बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुडन ब्लॉक ले लो या फिर आप कोई मेटल ले लो, वो अपनी शेप तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप इसको काटो या फिर तब तक आप इसको तोड़ोगे नहीं। समझ में आई बात? तो सेकेंड पॉइंट इज द फिक्स वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो कांस्टेंट ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द कंटेनर इट इज़ इन। जब कोई से भी कंटेनर में वो कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है ना वो कंप्रेसिबल नहीं होंगे और वो ऑक्यूपाई करेंगे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है। नाउ फॉर इंस्टेंस इफ यू प्लेस अ सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन इन अ लार्जर बॉक्स, इट वुडंट एक्सपैंड टू फिल द बॉक्स और उसका साइज सेम ही रहेगा। ठीक है। अब नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज हाई डेंसिटी। ब्रैकेट में लिखा है दे आर हैवी। सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। क्यों होती है? क्योंकि जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है। इसका मतलब ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा मास होगा। किस में होगा? बहुत स्मॉल वॉल्यूम में होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेटल्स लाइक आयरन और लेड, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू द वाटर और एयर। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डू नॉट फिल द कंटेनर प्रॉपरली। अगर आप उसको कोई भी कंटेनर में डाल दो तो सॉलिड एक्सपैंड नहीं करेगा एक कोई भी शेप लेने के लिए कंटेनर की। वो एक स्पेस ही लेगा जो उनको चाहिए। लाइक अगर आप सॉलिड क्यूब को जार में डालोगे वो बॉटम पे ही रहेगी विदाउट स्प्रेडिंग आउट। लाइक वो एंटायर जार में स्प्रेड नहीं हो जाएगी, वो बॉटम पे ही रहेगी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दे डू नॉट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं करता जैसे लिक्विड और गैसेस करता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है वो उनके लॉक्ड होते हैं। ठीक है। और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है ना पार्टिकल के बीच में, वो उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको प्रिवेंट कर रही है। किससे? फ्रॉम स्लाइडिंग पास ईच अदर। जिसकी वजह से हम लोग सॉलिड को पोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लें एक रॉक का या फिर एक प्लास्टिक का पीस, वो भी फ्लो नहीं करता, वो अपनी पोजीशन में ही रहता है। सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी है नो फिक्स शेप। लिक्विड डोंट हैव अ डेफिनेट शेप। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन। वो जिस भी कंटेनर में वो उनकी शेप ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, वो इधर से उधर मूव करते रहेंगे, जिसकी वजह से वो लिक्विड को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए और शेप चेंज करने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ ग्लास विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास। अगर वाटर ग्लास में है तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर आप वाटर को कटोरी में लोगे तो वो डैट विल टेक द शेप ऑफ द कटोरी। ठीक है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द फिक्स वॉल्यूम। इवन दो लिक्विड डोंट हैव अ फिक्स शेप, तो दे डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपने जो अमाउंट, जितना भी लिक्विड का जो भी अमाउंट रहेगा वो उतना ही रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 100 ml ऑफ जूस को बॉटल से कप में डाला तो वो 100 ml ही रहेगा। लाइक बॉटल में भी 100 ml था एंड अगर आपने उसको कप में डाला तो वो भी 100 ml ही रहेगा। थर्ड इज मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो यूजुअली कम होती है किससे? सॉलिड से, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड में वो इतने क्लोज होते हैं देन इन गैसेस, बट नॉट सो एज टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड। सॉलिड में तो टाइटली पैक्ड होता है, लिक्विड में थोड़े पार्टिकल्स हल्के से लूज होते हैं एंड गैसेस में तो बहुत ज़्यादा ही लूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑयल एंड वाटर आर लिक्विड, जबकि उनकी डेंसिटी अलग अलग है बट दे आर मोर डेंसर देन एयर।
फोर्थ प्रॉपर्टी इज डू नॉट फिल द कंटेनर प्रॉपरली। लिक्विड एक्सपैंड नहीं करते अपना कंटेनर को पूरा भरने के लिए, वो बॉटम में ही सेटल हो जाते हैं, वो शेप ले लेते हैं जिस भी कंटेनर में आपने उस लिक्विड को डाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पोर वाटर इनटू अ बॉटल, वो बॉटम पे ही रहेगा। जब स्प्रेड होने से अच्छा है कि वो बॉटम पे ही रहेगा जब तक वो पूरी बॉटल आप भरोगे नहीं। फिफ्थ पॉइंट इज लाइक जनरली फ्लो इजीली। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो दिस अलाउज देम टू बी पोर्ड एंड स्प्रेड। ये अलाउ करता है पार्टिकल्स को स्प्रेड होने के लिए, जबकि कुछ लिक्विड जल्दी फ्लो कर लेते हैं दूसरों से। फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्लोज क्विकली वाइल हनी फ्लोज स्लोली बिकॉज इट इज़ थिकर, जिसकी वजह से पानी जल्दी फ्लो करता है। अब हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है नो फिक्स शेप। गैसेस के पास डेफिनेट शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं और स्प्रेड होते रहते हैं हर डायरेक्शन के अंदर। और एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने एयर को रिलीज करी कहाँ से, बलून से, वो स्प्रेड हो जाएगी कहाँ पे, थ्रू आउट दी रूम के अंदर वो स्प्रेड हो जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज नो फिक्स वॉल्यूम। गैस का ना ही तो फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाती हैं पूरी वॉल्यूम को भरने के लिए, किस में, कंटेनर में। एंड कोई सा भी कंटेनर का साइज हो डजेंट मैटर। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू पम्प एयर इनटू अ स्मॉल बलून, वो बलून को पूरा भर देगा। अगर आप पंप करोगे सेम एयर इनटू अ लार्जर बलून, इट एक्सपैंड्स टू फिल दैट बलून टू। क्योंकि अगर आपने उस बलून को पूरा भर दिया, छोटे बलून को, उसी एयर से, और वही एयर अगर आप लार्जर बलून में डालोगे तो वो एक्सपैंड होती रहेगी, इधर से उधर मूव करती रहेगी उस बलून को भरने के लिए। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज द लो डेंसिटी। एज यू नो दे आर लाइट। ठीक है, गैसेस के पास कम डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि जो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर से उधर स्प्रेड होते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लाइट हैं क्योंकि उनके पास सेम अमाउंट ऑफ स्पेस है। और एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, किससे, पानी से, जिसकी वजह से जो बलून है वो एयर से फिल होता है और वाटर पे फ्लोट करेगा। ठीक है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि जो गैसेज है वो अपने कंटेनर को प्रॉपरली फिल कर लेते हैं, क्योंकि जो गैसेज हैं वो उनके पास लूजली पार्टिकल्स होते हैं, वेरी वेरी लूजली पार्टिकल्स हैं। ठीक है। और वो जो गैसेज है वो एक्सपांड होती हैं अपना कंटेनर को प्रॉपर भरने के लिए एक प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज गैसेज कैन फ्लो इजीली, क्योंकि पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो ये थी गैसेज की प्रॉपर्टी। तो अब हम इनके डिफरेंसेस देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लिक्विड में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, गैसेज में तो बहुत ही ज़्यादा कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। नाउ अब देखो इनके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है, ये तो हमने पता कर लिया। ठीक है। लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन उनका डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। गैसेज में ना ही डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, गैस की तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि अगर आप उसको स्क्वीज तक नहीं कर सकते, उसको आप प्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को कंप्रेस करा जा सकता है, गैस को तो हाईली कंप्रेस। आप बैलून का एग्जांपल ही ले लीजिए, बैलून को अगर आप प्रेस करेंगे वो ईजिली हो जाएगा, तो गैसेस कैन बी हाईली कंप्रेस। So let's move on further. So now there is one question like what makes the matter change state? मतलब ऐसा क्या होता है कि मैटर अपना स्टेट को चेंज कर लेता है, लाइक सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ जस्ट मेनली बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अगर आप कोई भी चीज़ को हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। अब एनर्जी गेन करेंगे तो पार्टिकल बहुत ज़्यादा जल्दी और फास्ट मूव करेंगे, तो जिसकी वजह से अपना वो मैटर चेंज कर लेता है। अब जब हीट की बात हो ही रही है तो हीट कैसे होता है? अगर आप कोई सब्सटेंस को मेल्ट करा दो, हीट है, सनरेज है, सनरेज से कैसे होता है? इवापोरेशन से हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चेंज कर दो, मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बनाना तो कैसे बनाओगे? मेल्ट करके। अब पानी से बर्फ़ बनाना तो कूल करके। तो डैट इज जस्ट बेसिकली ऑफ टेम्परेचर। कम टेम्परेचर किया तो मेल्ट हो गया, हाई टेम्परेचर किया तो वो फ्रीज हो गया। ठीक है। अब हम प्रेशर की बात करते हैं।
अगर आप प्रेशर लगाओगे ना तो वो अपना स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज कर लेगा। जैसे कि अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर कम करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड पे भी प्रेशर को कम रखा जाता है, और जो वाटर है वो बॉयल करता है टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इट। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के स्टेट में। सॉलिड कैसे कन्वर्ट होगा लिक्विड में, जब आप उसको हीट करोगे। नाउ द लिक्विड कैसे कन्वर्ट होगा गैसियस में, बाय जैसे कि इवापोरेशन। अगर आप क्या बोलते हैं धूप में पानी की बाल्टी रख दो तो वो जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा, आपको वो पानी आधा मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो पानी इवापोरेट हो चुका है। ठीक है, या तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में हो जाएगी। और लिक्विड को आप सॉलिड में कैसे कर सकते हो, बाय फ्रीजिंग। अगर आप उसको फ्रीज करोगे तो वो पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेंजेस ऑफ द स्टेट, अगर आप सॉलिड से लिक्विड बनाना तो आप क्या करोगे, हीट करेंगे। अगर आप एग्जांपल ले लीजिए आइस क्यूब का, आइस क्यूब से अगर आपको वाटर लेना तो आप कैसे लोगे, हीट करके या तो मेल्ट करके। मेल्ट कैसे होता है, हीटिंग से ही होता है। अगर आपको लिक्विड से गैस करना है तो कैसे होगा, हीट से ही होगा। ठीक है, अगर आपको गैस से लिक्विड करना है तो कैसे करोगे, कूल करके। ठीक है, कूलिंग करोगे। अगर आपको लिक्विड से सॉलिड आना तब भी आप कूलिंग करोगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहला स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर का, वो है मेल्टिंग। मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस changes into a liquid on heating is called melting. For example, in summers, I guess you all love to eat ice cream. ठीक है, तो हम लोग जब आइसक्रीम खाने ही लगता है इतने में वो मेल्ट होने लग जाती है। मेल्ट क्यों होती है, क्योंकि समर्स में क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, वो हीट हो रही है। हीट की वजह से वो आइसक्रीम क्या है, वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दी सब्सटेंस। बेसिकली जिस टेम्परेचर पे वो जो सॉलिड सब्सटेंस है ना वो मेल्ट हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दी सब्सटेंस। बेसिकली जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड सब्सटेंस अपने आप को मेल्ट करना शुरू कर देता है वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दी सब्सटेंस। सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टडिंग अबाउट दी बॉइलिंग। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग को हम लोग यहाँ पे इवापोरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल बताया था। जैसे कि अगर आप एक टब लेते हो पानी का, उसको आप अगर आप धूप के नीचे रख देते हो, ठीक है, कुछ घंटों के लिए, तो वो जो पानी है वो आपको आधा मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो पानी आधा क्या है, इवापोरेट हो चुका है। ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड ने बॉयल होना शुरू कर दिया और वो कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखी होती, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को अगर आप बाहर निकालते हो तो बाहर निकाल के जो उसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बाहर आ जाती हैं। एंड अगर आप कोल्ड ड्रिंक की जो कैन ले लो या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को उठाओगे तो नीचे आपको लिक्विड मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंडेंसेशन की वजह से। समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एग्जाम्पल, फ्रीजिंग एंड आइसक्रीम। अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो उससे पहले आपको उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, तभी आप उस आइसक्रीम का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपने वो आइसक्रीम फ्रिज में नहीं रखी और कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनट के लिए भी बाहर पड़ी है तो वो मेल्ट हो जाएगी। स्पेशली समर में तो बहुत ज़्यादा ही मेल्ट हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, फ्रीजिंग होती है कि अगर आप किसी भी लिक्विड को क्या बोलते हैं, सॉलिड बनाना चाहते हो तो वो क्या है, फ्रीजिंग।
लाइक फॉर एग्जांपल नाउ डेज रील्स में ऐसा बहुत चलता है कि लोग फ्रूटी के अंदर आपका वो डाल देते हैं, क्या बोलते हैं वो, आइसक्रीम स्टिक, और उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो वो लोग फ्रूटी आइसक्रीम का भी मज़ा लेने लग जाता है। तो वो कैसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीजिंग की वजह से। तो अब हम पढ़ेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू द वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना ही हम इवापोरेशन बोलते हैं। इसको हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इवापोरेशन का? ड्राइंग द मॉप फ्लोर, स्वेटिंग द वेट क्लॉथ, ड्राइंग इन द सन। बेसिकली व्हेन द clothes are the wash, they become saturated with the water. So hanging these wet clothes outside in the sun initiate the evaporation process. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट आ रही है ना सनलाइट से, वो एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। कौन सी एनर्जी को? और किसकी एनर्जी को? वाटर मॉलिक्यूल्स की। अभी जो वाटर मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट है? फैब्रिक में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो उसको फोर्स करेगा पार्टिकल्स का फास्टर मूव कराने के लिए। अब सन रेज के जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के, वो एनर्जी गेन करेंगे और वो भागने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे? एयर के अंदर, और जिसकी वजह से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना ही इवापोरेशन होता है। The factors affecting evaporation. The several factors can influence the rate of evaporation. The main factors are temperature, humidity, surface area, and the last, wind speed. The rate of evaporation increases on increasing the temperature. अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे एंड दे विल ट्राई टू एस्केप इनटू द एयर क्विकली, जिसकी वजह से इवापोरेशन जल्दी होगा। सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भागने की कोशिश करेंगे इनटू द एयर। ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा एयर मूवमेंट होगा, विच विल हेल्प डिस्पर्स द वाटर वेपर दैट फॉर्म एज लिक्विड मॉलिक्यूल इवापोरेट। जितने जल्दी लिक्विड मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली विंड स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी, इवापोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। बेसिकली ह्यूमिडिटी किस पे रेफर करती है? जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है किस में? एयर के अंदर। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जो ड्राइड एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वो इवापोरेशन कम कर देगी। सो नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल ड्राई आइस या फिर कैम्फर। एग्जांपल ले लीजिए, घर में सबके घर में कपूर तो होता ही होगा, सबने देखी होगी। अगर आप उस कपूर को बर्न करते हो या हीट करते हो तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमेशन। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास. In the next class, we will be discussing about the latent heat and the diffusion and more topics. So till then, thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe for more interesting chemistry lessons. So by the way, what is your favorite state of the matter? Let me know in the comment. So stay tuned for my next video on the Chemistry channel. Until next time, keep exploring the wonders of the chemistry. Bye bye.